Good morning, students. Welcome in my class. Myself, Ranbir Thakur, working in DIPS institution as an HOD Commerce at DIPS School, Kapurthala. I am associated with this institution for the last 25 years in teaching profession. But with the DIPS institution, I have worked more than 17 years. So, welcome in my class. Your responsibility for accountancy subject, again, this year it is being assigned to me. So, nothing to worry. We will start this particular subject, accountancy, in such a way that you will find it is very much interesting, very much scoring, and very much creative subject. You will learn new things, you will find wonderful experiences, and my main aim is, after covering this whole subject, you will become a wonderful human being. So my name Ranbir Thakur. You must know who is going to teach you. This is my contact number, beta, 978063991. In case if you are having any type of problem, you can call me. But keep this thing in mind. Time at which you can call, that is 6 to 7 p.m. In between 6 p.m. to 7 p.m. you may call freely, no problem. Anytime you feel कि भाई you are having doubts in particular topic, most welcome beta. I will be quite happy to help you. So today we are going to start from partnership, because in our DIPS syllabus breakup, syllabus will start from partnership. So NPO topic we will cover next month, later on. So what is the name of chapter? Accounting for partnership firms. Fundamental. So this is the basic partnership chapter, and topic is today which we are going to cover meaning, features and definition of partnership. So let's start. What is partnership? Nothing to worry, very easy. Only thing is just observe and listen and enjoy. So what is partnership? I am going to start, beta. What is partnership? So we are going to discuss its meaning. It is a voluntary, VOLUNTARY. It is a voluntary association. पहले सुनना है बेटा, ध्यान से सुनना है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, मीनिंग बताऊँगा ईच वर्ड का, और ये आपकी टिप्स के ऊपर मीनिंग हमेशा याद रहेगा. तो व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू persons. Two or more than two persons, more than two persons who are ready to combine their resources. हमने मीनिंग ऐसा बनाना बेटा जिसके बीच में से ही हमें फीचर मिल जाए, यानी उनको अलग से ना याद करना पड़े. तो इसीलिए हम मीनिंग खुद बनाएंगे. व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन of 2 or more than 2 persons who are ready
to combine their resources. To combine their resources. Why? To carry on a C-A-R-R-Y, to carry on a lawful business. ठीक है, अभी होएगा कि आपको वॉलंटरी का मीनिंग नहीं पता, एसोसिएशन का नहीं पता, है ना, तो नथिंग टू वरी, सुनना है बड़े प्यार से। लॉफुल बिजनेस। अब बाकी का मीनिंग कंप्लीट करने से पहले कर ही लेते हैं, चलो कंप्लीट फिर समझाते हैं। टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स, फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स oblique losses in an agreed ratio. Full stop. It may be carried on. It may be carried on by all the partners jointly, all the partners jointly, or by any one of them, by any one of them who will act for all. डन। अब एक बार ध्यान से मीनिंग समझो बेटा। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप, इट इज ए वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स विलिंगली, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं बेटा? सो दैट दे कैन कंबाइन देयर रिसोर्सेज। तो हर एक पर्सन के पास तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं बेटा, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मैं और एक पर्सन मिस्टर एक्स, हम दोनों दोस्त हैं और डिसाइड किया क्यों ना मिलके बिजनेस चलाएं। क्लियर? और नेचुरली मेरा अलग बिजनेस था, उसका अलग था, तो मेरे बिजनेस में भी तो पैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। और मेरे बिजनेस में एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स है। मेरे पास फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, ये मेरे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपने फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज उनको भी मिलाते हैं बेटा। तो फिर से वापस आए, इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी इट इज सच ए ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर वी कांट कंपेल एनी पर्सन फोर्सफुली टू बिकम अ पार्टनर। मीन्स हम किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकते पार्टनर। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बंदा अपनी मर्जी से पार्टनर बनने के लिए तैयार होता है बेटा। चलिए आगे। तो इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स। तो कम से कम कितने होने चाहिए? टू। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं बेटा? तो याद रखना है 50। कितने? 50। तो इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स हु आर रेडी टू कंबाइन देयर रिसोर्सेस। किस लिए वो मिलते हैं? ताकि अपने रिसोर्सेस मिला लें। क्यों मिलाएं भी रिसोर्सेस? क्या जरूरत पड़ी है? टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस सो दैट दे कैन रन ए लीगल बिजनेस। ये नहीं है कि चार दोस्त मिलके कहें हम बैंक डकैती करनी है, तो इट इज एन इलीगल एक्टिविटी।
तो जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। अब बिजनेस क्यों चलाते हैं बेटा हम? फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ताकि हम उसमें से प्रॉफिट और लॉस कमा सकें। अब वो प्रॉफिट और लॉस जो कमाएंगे उसको बांटेंगे भी तो सही। तो किस रेशो में बांटना है? जो दोनों ने मिलके डिसाइड कर ली तो उसे कहा जाता है एग्रीड रेशियो, यानी विच इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स ने आपस में सहमति से जो रेशियो बना ली उसे हम कहते हैं बेटा एग्रीड रेशियो। अब और आगे चलते हैं। इट मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली, सारे पार्टनर मिलके इकट्ठे भी बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर कहते हैं जी हम तो पैसा ही लगा सकते हैं, क्लियर, और हमारे पास टाइम नहीं है देने के लिए, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। और जो पार्टनर एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है उसे बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। तो होपफुली मीनिंग क्लियर होएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं मीनिंग। इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो ये ऐसा विलिंगफुल ग्रुप है जिसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग, दे हु आर 2 पर्सन हु आर रेडी टू कंबाइन देयर रिसोर्सेज, जो मिलके अपने रिसोर्सेज को मिलाते हैं। किस लिए? टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस, ताकि एक कानूनी बिजनेस चला सकें। बिजनेस क्यों चलाएं? फॉर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट और लॉस कमाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस का कमा के करना क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किस रेशियो में? इन एन एग्रीड रेशियो। इट मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली और बाय एनी वन ऑफ देम हु एक्ट फॉर ऑल। होपफुली मीनिंग क्लियर हो गया आपका। अगला टॉपिक लेते हैं बेटा फीचर्स, लेकिन मेरे को लगता है आज के लिए हम इतना ही रखें मीनिंग, ठीक। अब इसके अंदर फीचर्स के पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से। तो पहला ही फीचर बनेगा, कौन सा फीचर बनेगा? नंबर 1 वॉलंटरी एसोसिएशन। तो पहला फीचर नंबर 1 वॉलंटरी एसोसिएशन। अब इसको क्या लिखेंगे हम वॉलंटरी एसोसिएशन को? मीन्स इट इज सच ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, इट इज सच ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वेयर ऑल मेंबर्स आर विलिंगली रेडी टू ज्वाइन इट। फोर्सफुली वी कांट कंपेल एनी पर्सन टू बिकम अ पार्टनर। तो पहला फीचर हमें मिल गया बेटा यहां से वॉलंटरी एसोसिएशन। दूसरा बनाते हैं हम प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। प्लूरैलिटी, अब सर बच्चों ने कहना सर ये नया वर्ड डाल दिया आपने, इसका क्या मतलब होता है? तो याद करो, हम सिंगुलर प्लूरल याद करते थे, एक वचन बहुवचन, तो ये वहां से उठाया मैंने प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। अब मतलब समझो इसका कि पार्टनरशिप फर्म में को शुरू करने के लिए कम से कम 2, ये देखो हमने लिखा है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। हम ये भी टाइटल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लिखना, लेकिन ये आपका टेक्निकल वर्ड आ गया प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, कि पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं बेटा? 50 मेंबर, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर वो क्या करते हैं? 2 या 2 से लोग कंबाइन देयर रिसोर्सेज। तो तीसरा फीचर हमें मीनिंग से मिल गया पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूल करने का मतलब होता है बेटा कंबाइन करना। आप कंबाइनिंग ऑफ रिसोर्सेज दे सकते हो, लेकिन कंबाइन या पूल वर्ड, कंबाइन वर्ड तकरीबन बुक्स में यूज होएगा, तो समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। टीचर को लगे बच्चे ने अपनी वर्डिंग यूज की है, उसका इंप्रेशन पॉजिटिव पड़ता है बेटा। तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन कौन से थे? फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो इन रिसोर्सेज को भी मिलाते हैं। आगे चलते हैं, 4th पॉइंट था हमारा, ये आ गया कंबाइंड रिसोर्सेज, ठीक है। हम मीनिंग से उठा रहे हैं।
अगला पॉइंट, क्यों चलाते हैं बेटा, क्यों रिसोर्स को पूल करते थे, सो दैट दे कैन रन अ लॉफुल बिजनेस। तो चौथी फीचर हमारी बन गई लॉफुल बिजनेस। लॉफुल लिख सकते हो लीगल बिजनेस, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जो भी बिजनेस चलाएंगे इट शुड बी लीगल। पांचवा पॉइंट, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो भी प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना बेटा, और किस रेशियो में, विच इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय ऑल द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो ये आ गया हमारे पास एग्रीड रेशियो। 5 फीचर हमने अलग से लर्न नहीं किए, हमने अपने मीनिंग में से ही निकाल लिए। डन, आगे चलते हैं। इसके बाद था इट में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर जॉइंटली, सारे मिलके चला सकते हैं या कोई एक सबके लिए भी काम कर सकता है। इस रिलेशनशिप को बोला जाता है बेटा पार्टनर्स की म्यूचुअल MUTUAL एजेंसी रिलेशनशिप। ये नई टर्म आ गई आपके लिए, तो आपने कहना सर एक नई बात और डाल दी, होता क्या ये, इसका मीनिंग नहीं पता, तो वो समझो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। मान लो एक बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है A, एक पार्टनर का नाम है B और एक पार्टनर का नाम है C। अब बिजनेस तीनों मिलके चला रहे हैं, गेटिंग बेटा, तीनों पार्टनर। अब मान लो जो काम A पार्टनर करेगा, यहाँ पे मान लो A एक्टिव पार्टनर है, ठीक है बेटा। अब A ऑनर तो है ही है, लेकिन वो B और C के लिए भी तो काम कर रहा है, तो वो B और C कौन है, ऑन प्रिंसिपल यानी ऑनर, और ये क्या बन गया उनका एजेंट, ठीक है। तो A अपने लिए भी काम कर रहा है, B के लिए भी काम कर रहा है, C के लिए भी काम कर रहा है। ऐसे ही एक्टिव पार्टनर B भी है, तो अब B मालिक भी है, प्रिंसिपल भी है, ऑनर भी है, लेकिन B A और C के एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है। ऐसे ही C भी हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर है, C ऑनर है, तो वो अपने लिए तो काम कर ही रहा बेटा, लेकिन वो A और B के लिए एज एन एजेंट भी तो काम कर रहा है। तो ये जो पार्टनर ऑनर भी होते हैं और दूसरों के लिए एजेंट का काम भी करते हैं, इस रिलेशनशिप को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। डन। तो आज का टॉपिक हमने मीनिंग कवर किया, फीचर्स कवर कर लिए। एक है इसकी डेफिनीशन, तो डेफिनीशन किस एक्ट के अंदर दी गई है वो देखते हैं बेटा। यहाँ देखो, तो यहाँ ध्यान रखना है, इसकी डेफिनीशन गिवन है किस एक्ट के अंदर, तो वो एक्ट लिखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। डन। कौन सा, 1932। इस एक्ट के अंदर गाइडलाइंस दी हैं बेटा, और गाइडलाइंस किस सेक्शन के अंदर दी गई हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक्शन 4। किस सेक्शन के अंदर बेटा, सेक्शन 4। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के मीनिंग को डिफाइन किया गया है। तो वो डेफिनीशन जो भी होती है ना बेटा एक्ट की, उसकी वर्डिंग को एज इट इज लिखना होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकते। तो अब हम उस डेफिनीशन को देखते हैं, क्या है डेफिनीशन, बड़े ध्यान से समझना है। 4 हमने किए, डेफिनीशन को देख लें। तो डेफिनीशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं बेटा। क्या, पार्टनरशिप इज, ये डेफिनीशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए जो मीनिंग मैंने करवाया वो परफेक्ट है, हमें फीचर उसी में से मिल गए, है ना। लेकिन आप मीनिंग देखोगे
ये मीनिंग टेक्निकल है, तो इसलिए डेफिनेशन को लर्न करना है लेकिन मीनिंग मेरे वाला ही करना है। तो डेफिनेशन क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons, ठीक, who have agreed, एक बार हम लिख लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of, all के बाद और any of them acting for all। ये है डेफिनेशन, इसको एज इट इज लर्न करना। क्या कहता है बेटा? पार्टनरशिप कहाँ गिवन है? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप। और वो क्या डिफाइन कर रहा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस नहीं बताया, इसमें उन्होंने कहीं पे भी ये बोल दिया कि एग्रीड रेशियो है। तो कैसा बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वो नहीं बताया। तो है मीनिंग दिया एक्ट के अंदर, तो इसको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, कई बार 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है डिफाइंड पार्टनरशिप, तो उस केस में हमने ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है। लेकिन जब भी आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप या व्हाट इज पार्टनरशिप, तो वही मीनिंग कवर करना जो मैंने करवाया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं बेटा। थैंक्स अ लॉट, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। व्हाट्सएप के अंदर बेटा आप, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो लेक्चर, वेदर इट इज़ यूजफुल और व्हाट मोर यू एक्सपेक्ट, ताकि अगले लेक्चर को मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग और बढ़िया करें। मिलके चलेंगे, डेफिनेटली हम इम्प्रूव करेंगे। और ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक हवा बना हुआ है कि बहुत डिफ़िकल्टी है, समझ नहीं आता, नथिंग लाइक दैट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बेटा, और जिसके अंदर आप अपनी पर्सनली प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।